NDA 1 2025 has happened, and once again, history has repeated itself. The paper came out, and our notes matched line by line, topic by topic. But is this a coincidence? No, this is not a coincidence. At New Courage Academy, we've been doing this for years. This is what we do. We don't just prepare you, we predict with precision. We don't just teach, we train you to win. And NDA 1 2025 was no different. From general studies to mathematics, our material was on point because we build our content based on experience, strategy, and unmatched understanding of the NDA examination. This is not a first time, and it won't be the last. Our track record speaks volumes. Hundreds of selection, countless success stories, and a name that stands tall in defense coaching for over half a century. NCA isn't just an academy, it's a legacy. Founded by late Lieutenant Colonel H.S. Dhaliwal, we've been shaping officers and warriors for the Indian Armed Forces with a relentless focus on excellence, discipline, and results. And I also studied from this academy NCA. Good afternoon, everyone. Myself R. Chandukumar from Andhra Pradesh, and I have been in this institute from 2 months, and I feel great and honor. It's an honor to be a part of this institution. So if you're aiming for 2025 NDA, don't waste your time. Join the institute that has already shown you the paper before it even came out. Join the name trusted by thousands. Join New Courage Academy, where results aren't claimed, they're delivered. तो नाउ लेट्स डिस्कस कुछ साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमें पता है साइंस में आपका एनडीए के अप्रोक्सीमेटली आपके 40 to 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो अभी आपके एनडीए 1 2025 में आए हैं और कहाँ से डायरेक्टली हमारे नोट्स में से आए हुए हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है 54th क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 54 से पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। आपका ऑप्शन फर्स्ट is 0, B option है आपका decreases as we move towards its end, and option C is increases as we move towards its end, and option D है हमारा is uniform inside the solenoid. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि magnetic field due to current in solenoid, ये है हमारे notes. So यहाँ पे अच्छे से explain करा गया है। Field lines inside solenoid are in the form of parallel straight lines, और साथ में it indicate that magnetic field is same at all points inside solenoid, that is यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट को क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको साफ दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे कि इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इज यहाँ पे बात करी गई है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है हमारी, यहाँ पे इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड सोलेनॉइड। सो डायरेक्टली है हमारे सोर्सेज में से, नोट्स में से डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है कि इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105th क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। अब आपकी ऑप्शन ए क्या है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब बी ऑप्शन है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ऑप्शन सी क्या है हमारा, ए कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, and option D is the constituents of a compound can be separated only by chemical or electrochemical reactions. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं A, B, C, D, और आपसे पूछा गया है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज नॉट करेक्ट। सो आपका यहाँ पे लिखा गया है कि नोट्स में जैसे आपको देखने को मिल सकता है कंपाउंड क्या है हमारा, सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और हमारी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स थी, तो यहाँ पे बात करिए ऑप्शन सी क्या है हमारा, एक कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। ये क्या है आपका नॉट करेक्ट। बाकी आपके ऑप्शन सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स, ये डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए क्या है हमारा डायरेक्टली नोट्स में से। उसके बाद कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ से आपको देख सकते हैं कि सीडीएस का भी एक। अब 108th क्वेश्चन है आपका, which one of the following statements regarding oxidation and reduction reaction is not correct। ऑप्शन ए है आपका, if a substance loses hydrogen during reaction it is reduced। ऑप्शन बी, if a substance loses oxygen during reaction it is reduced। ऑप्शन सी, if a substance gains hydrogen during reaction it is reduced। ऑप्शन डी, if a
substance gains oxygen during reaction, it is oxidized. अब आपका क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट दी गई है किससे रिगार्डिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, और पूछा गया है कि कौन सी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट इज नॉट करेक्ट। अब आप यहाँ देख सकते हो नोट्स में क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, उसके बाद रिडक्शन है, रिडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में क्या लिखा गया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में ही आपकी बात चल रही है रिडक्शन की, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन था आपका रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन बी, इफ ए सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज रिड्यूस्ड, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन है, ए कार हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एंड इज brought to rest over a distance of 45 meter. The acceleration of the car is, आपके ऑप्शन प्लस 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी प्लस 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी माइनस 1.6 मीटर पर स्क्वायर, ऑप्शन डी माइनस 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन है आपका रिलेटेड किससे, द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली दिया गया है हमारा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। सो यहाँ पे बात करेंगे ए कार हैज इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी की बात हुई है सबसे पहले। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u है आपका 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इज एंड इज अबाउट टू रेस्ट ओवर, अब रेस्ट की बात हो रही है। सो यहाँ पे बात क्या करी गई है, टू रेस्ट ओवर ए डिस्टेंस द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। अब क्वेश्चन था एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आप देख सकते हो कि फॉर्मूला डायरेक्टली नोट्स में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपका 90th क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिलेटेड टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट। अभी आपको कुछ इक्वेशन दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन रिलेटेड टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट करेक्ट। सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग्स। अब आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए इज, आपका फर्स्ट ऑप्शन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने कुछ आपका जो हमने नोट्स करे थे, नोट्स में से हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो बी ऑप्शन है आपका u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी। उसके बाद है सी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और ऑप्शन डी है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग nth सेकंड इज u प्लस हाफ a ब्रैकेट 2n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या है, अब ये आप डायरेक्टली देख सकते हो, फॉर्मूलाज हमारे रिटर्न है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन क्या है आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको कैसे लिखा जा सकता है, u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ना कि u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95th क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है आपका, एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज। अभी आपको क्या पूछा गया कि यूनिफॉर्म स्पीड पे एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है मिनिमम, ऑप्शन सी है 0 एंड डी ऑप्शन इज कांस्टेंट। सो आप देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली अलग से मेंशन नोट करके यहाँ पे डाला था नोट्स वाले टाइम हमने जब करा था क्लासेस में। तो यहाँ पे क्या था, जो नोट है आपका, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने साथ के साथ नोट्स में ऐड करे हुए थे। अब यहाँ पे मेंशन है कि नोट एट यूनिफॉर्म स्पीड एक्सेलरेशन इज 0। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ हमारे यहाँ से, स्पीड क्या है हमारी, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड डजंट चेंज। सो एट यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि हमारी स्पीड क्या है, चेंज नहीं हो रही। तो एट यूनिफॉर्म स्पीड द एक्सेलरेशन इज 0। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। तो ये क्या है आपका, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when a light ray passes through from air to water with a non-zero angle the ray will be। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कोई भी आपकी रे है, किसकी लाइट रे है, पासिंग थ्रू फ्रॉम एयर टू वाटर, क्या कर रही है, पास कर रही है कहां से, एयर टू वाटर, विद ए नॉन जीरो एंगल द रे विल बी। अब ऑप्शन ए है बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन सी प्रोपेगेटिंग इन स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब
हमने यहाँ पे पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे हमने अच्छे से न्यूमोनिक के साथ ऐड करा था आरडीटीएन एंड ड्रेन के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, आरडीटीएन में क्या है, जब वो रेयर टू डेंसर जा रही है तो आपका टुवर्ड द नॉर्मल जाएगी वो। उसके बाद ड्रेन जब डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हमने जैसे देखा कि यहाँ पे क्या है, बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो रेयर टू डेंसर जा रही है आपकी, जैसे यहाँ पे बोला गया एयर टू वाटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी option A, bending towards the normal. Now the next question is, an object is placed between infinity and pole of convex mirror। अब यहाँ पे बात करी गई है convex mirror की, और object is placed between। अब हमने वहां पे नोट्स में देखा था अच्छे से कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगी, उसका साइज क्या होगा, और हमारी इमेज का नेचर कैसा होगा, ये हमने अच्छे से डिस्कस करा था जब हमने क्लास में करा था। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली नोट्स में से है। आप क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज। अब आपको क्या दिया गया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है कि वो कहाँ पे प्लेस करा गया है, तो प्लेस करा गया है वो बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। और अब पूछ लिया गया है आपसे कि द पोजीशन ऑफ द इमेज इज, कि जो आपकी पोजीशन होगी इमेज की, इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। सो ऑप्शन ए है बिटवीन पोल एंड द फोकस behind the mirror. Option B is between the focus F and infinity behind the mirror. Option C between the pole P and the infinity in front of the mirror. Option D at the focus F behind the mirror. Now आप देख सकते हो नोट्स में से, अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। अब हमारा क्वेश्चन था when an object is placed between infinity and the pole। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट between infinity and the pole, डायरेक्ट है क्वेश्चन आपका। उसके बाद हमें पूछा गया है कि जो आपकी इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, और कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। ये हमने हाईलाइट भी करा हुआ है अच्छे से, तो आप देख सकते हो कि नोट्स में से हमारा क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट बिटवीन पोल पी एंड द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर। Now the next question is 58th question. The frequency f, wavelength lambda and speed v of a sound wave are related as। हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, और पूछा गया है कि ये कुछ साउंड वेव की क्या है, टर्म्स दी गई है, और पूछा गया है कि आपस में रिलेटेड कैसे हैं। तो आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये जब हमने क्लास में करा था तो ये डायरेक्टली नोट्स में से आप देख सकते हो कि स्पीड कैसे ये रिलेटेड है आपस में, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो ये आपका फॉर्मूला है लैम्डा इनटू वी। सो यहाँ तक आपका जो भी क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ, ये क्वेश्चन आपका क्या है, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात करी गई है 94th क्वेश्चन में इको की। वी हियर एन इको ड्यू टू। अब हमें इको सुनाई देती है, उसके पीछे रीजन पूछा गया कि वो क्यों सुनाई देती है, ड्यू टू। अब ऑप्शन ए है आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, बी है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑप्शन सी है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, एंड डी इज रेजोनेंस ड्यू टू साउंड वेव्स। अब आप देख सकते हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हमने डायरेक्टली मेंशन करा इको, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन। तो हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इको किसकी वजह से आ रही है, इको, वी हियर एन इको ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन कहां से है, डायरेक्टली नोट्स में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। अब क्वेश्चन है हमारा, कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टम, बी एपिकल मेरिस्टम, सी है आपका इंटरक्लेरी मेरिस्टम, डी है परमानेंट टिश्यू। तो हमने जब हमारा बायोलॉजी की क्लास थी, हमने बायोलॉजी में अच्छे से देखा था कि ये यहाँ पे मेंशन है डायग्राम के साथ, ये क्या है आपका लेटरल मेरिस्टम, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ स्टेम। सो यहाँ पे हमने क्या देखा था, कैम्बियम। सो हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली नोट्स में से क्वेश्चन है आपका, कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टम। यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है अच्छे से, लेटरल मेरिस्टम, और ये क्या करता है हमारा, इंक्रीजेस गर्थ ऑफ स्टेम। सो कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टम। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिस्टम की बात करी गई है जो क्या नहीं करता, डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड। हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है आपका एडियाबैटिक सिस्टम,
बी है आपका नॉन एडियाबैटिक सिस्टम, सी है आपका इक्विलिब्रियम सिस्टम, डी है नॉन इक्विलिब्रियम सिस्टम। सो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका नोट्स में से क्वेश्चन है। आपका क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करिए, प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। हीट कंटेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट रह रहा है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा। सो ए सिस्टम दैट डज नॉट अलो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक सिस्टम। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी हमें क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट क्या है, ए है आपकी, ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। नेक्स्ट है आपका, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन। सी है आपका, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ऑप्शन डी, जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूट्रॉन। अभी आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं, जब हमने मॉडल्स करे थे हमारे एटम्स के, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा सोर्स में से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। सो ये डायरेक्टली लाइन ही उठा ली गई है यहाँ पे, ऑप्शन बी, दैट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 times that of proton. So option B will be the right answer of this question. Now the next question is match list 1 with the list 2. Select the answer using the code given below the list. अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट 1 में हमें केमिकल नेम दिए गए हैं किसी का, ए में जैसे वॉशिंग सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी जिप्सम। और लिस्ट 2 में उनके कुछ केमिकल फॉर्मूला दिए गए हैं, जैसे हमारा फर्स्ट में है CaAO उसके बाद NaHCO3, उसके बाद Na2CO3.10H2O और CaSO4.2H2O। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इन लिस्ट 1 और 2 को क्या करने के लिए बोला है, करेक्टली मैच करने के लिए बोलता है। जैसे कोड में आपको ऑप्शन दिए गए हैं A B C D। सो हम देखेंगे आपका, अब आप यहाँ से देख सकते हैं नोट्स में से, ये आपको डायरेक्टली लिस्ट प्रोवाइड है, यहाँ पे लिखा गया है आपका, चाहे बेकिंग सोडा है, उसके बाद आपका वॉशिंग सोडा है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम, क्विकलाइम, क्लेगलाइम और लाइमस्टोन, स्लेकलाइम। सो आप देख सकते हो आपके साथ में फॉर्मूला भी प्रोवाइड है, आपको दिए गए हैं नोट्स में अच्छे से। तो आपको सिंपली क्या बोला गया है कि इनको अच्छे से मैच करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। सो ऑप्शन डी, दैट इज ए का थर्ड है आपका, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका Na2CO3.10H2O। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा का है हमारा CaOCl2। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का है हमारा, बेकिंग सोडा का आपका NaHCO3 हो जाएगा, सी का होगा आपका फर्स्ट दैट इज CaOCl2 और डी का होगा आपका CaSO4.2H2O। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हो ये भी आपका नोट्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, 2 conducting wires of the same material of equal length and unequal diameter are first connected in parallel and then in series in a circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in parallel and series combination is। अब आपको क्या बोला गया है कि 2 कंडक्टिंग वायर्स की बात है यहाँ पे, ऑफ द सेम मटेरियल की बनी हुई है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ भी क्या है उनकी इक्वल, और इक्वल डायमीटर्स, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, पहले पैरेलल की बात करी गई है, उसके बाद एंड देन इन सीरीज, ऊपर सीरीज की बात करी गई है। उसके बाद द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ पे देखा था अच्छे से, आपका सीरीज में जो कनेक्शन था वो भी देखे थे, उसके बाद पैरेलल में भी देखे थे। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4:1, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज इफ 3 resistors of 1 ohm each connect in parallel to each other, the resultant resistance is। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 3 resistors हैं और 1 ohm each connect, और कहाँ किसमें कनेक्टेड है वो, इन पैरेलल में। तो आप फॉर्मूला देख पा रहे हो यहाँ पे, 1/Rp is equal to R parallel resistor is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 ohm। उसके बाद इफ द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस देन इट्स रेजिस्टिविटी विल बी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक लेंथ आपकी कॉपर वायर है और फिर लेंथ, उसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया बाय ट्वाइस, देन इट्स रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या रहेगी उसकी, तो यहाँ पे हमने देखा था नोट्स में डायरेक्टली लिखा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस देन इट्स रेजिस्टिविटी विल बी रिमेन्स सेम। वो क्या रहेगी हमारी, वो सेम रहेगी। तो आप देख सकते हो ये भी आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन आया है नोट्स में से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। अब यहाँ पे कुछ आपके पार्टिकल दिए गए हैं
और उनमें से पूछा गया कि जे चैडविक ने किसकी डिस्कवरी करी है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट देखी थी हमारे जो जो आपके पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने, उसके बाद प्रोटॉन ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जे चैडविक, न्यूक्लियस रदरफोर्ड। सो जे चैडविक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस इन इट्स सॉलिड फॉर्म। आपके ऑप्शन है SiO2, CO2, CaO, MgO। सो 102 क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन जब हमने करा था नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सॉलिड CO2 क्या बोल रहे हैं हम, ड्राई आइस। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें और पूछा गया है स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए, स्केल measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale. The higher the hydrogen ion concentration in a solution, higher is its pH. We can measure pH generally from 0 to 14 on a pH scale. The P in pH stand for potence in German meaning power. तो यहाँ हमने अच्छे से टॉपिक करा था हमारा pH scale वाला, that is pH power of hydrogen, higher the hydrogen lower is the pH value. तो यहाँ पे क्या था, the higher the hydrogen ion concentration in a solution, higher is its pH value। लेकिन यहाँ पे क्या है, lower is the pH value। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी will be the right answer of this question। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एसिड रेन द pH ऑफ रेन वाटर शुड बी लेस देन। आपके ऑप्शन है 7.0, 6.6, 5.6, 8.0। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एसिड रेन के लिए क्या मार्क करा हुआ है, pH लेस देन 5.6। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी, so the right answer of this question will be option C, that is 5.6। Now the next question is vitamin B1 is also known as। अभी आप देख सकते हो कि डायरेक्टली हमारे नाम से हमारे जो नेम दिए हुए हैं डिफरेंट, इसके विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, दैट इज थियामीन। तो हमने यहाँ पे लिस्ट भी प्रोवाइड करी है, जैसे B1, B2, B3, B5 जो आपके इनके नेम है, उनको क्या बोला जाता है। तो आप देख सकते हो ये भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में से। उसके बाद द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज, आपको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, डिसीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। सो मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट, दैट इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। सो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी क्या है, डायरेक्टली नोट्स में से क्वेश्चन है, वर्ड टू वर्ड नोट्स में से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जी हैज द यूनिट। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। सो मलेरिया, माइकोबैक्टीरियम, टीबी, प्लाज्मोडियम। सो पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच है, लेकिन इसमें से कोई भी करेक्टली मैच नहीं, ऑप्शन डी। तो यहाँ आप देख सकते हो मलेरिया दैट इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ये यहाँ पे आएगा, और टीबी माइकोबैक्टीरियम, यहाँ पे आपने देखा ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, neither 1 nor 2। Now the next question is, two bodies of unequal masses are dropped from a tower at any instant. They have equal momentum, acceleration, potential energy, kinetic energy. So the right answer of this question will be acceleration. Because बात किसकी करी गई है, two bodies of unequal masses are dropped from a tower, टावर से नीचे फेंकी गई है। So free fall, acceleration due to gravity. So the right answer of this question will be acceleration. उसके बाद next question है आपका, कुछ आपको लिस्ट 1 दी गई है जिसमें आपके क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, और साथ में लिस्ट 2 में उनके ऐसा यूनिट दिए गए हैं, और आपको क्या बोला है, उनको करेक्टली मैच करने के लिए बोला है, और आपको नीचे कोड दिए गए हैं। जैसे टेम्परेचर है, सो एज वी ऑल नो टेम्परेचर ऐसा यूनिट क्या है हमारा, केल्विन। वेट क्या है हमारा, केजी में। वेट किस में है हमारा, न्यूटन में। और उसके बाद मास किस में है हमारा, मास है आपका केजी में, और प्रेशर है आपका पास्कल में। सो द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now the next question is, when a solid body is partially or completely immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. The magnitude of the force is equal to। अब क्या बोला गया है, कोई सॉलिड बॉडी है, चाहे आप उसको पार्शियल और कंप्लीटली इमर्ज करते हो किसी फ्लूइड में, तो वो क्या, जो फ्लूइड है वो क्या एक्सर्ट करता है, एक अपवर्ड फोर्स, जिसको हमने क्या बोला था, बुआयंट फोर्स ऑन द बॉडी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू, जो उसका मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन 2 इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड बाय द बॉडी। सो हमने ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल अच्छे से करा था, और नोट्स में लिखा भी हुआ है कि व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड फुली और पार्शियली इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो हमारा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे देखा था कि स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी नोट्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी
that is strain. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, that is 52. The work done in moving a charge of 2 coulomb from a point A to B is 24 joule. What is the potential difference? पूछा गया है potential difference between A and B. So हम देख सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस का हमारा डायरेक्टली फॉर्मूले में से क्वेश्चन सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज. तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 12 वोल्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लैक्टिक एसिड दैट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन द मसल सेल्स ड्यूरिंग रिगरस एक्सरसाइज कॉजिंग मसल्स क्रैम्प्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. आपका ऑप्शन है ए एटीपी, बी पायरूवेट, सी इथेनॉल, डी इज ग्लूकोज. तो हमने ये अच्छे से देखा था, आप देख सकते हो इसी में से आपका क्वेश्चन सीडीएस में भी आया हुआ है. तो पायरूवेट दैट इज 3 कार्बन प्लस एनर्जी, जो आपका ये रिलीज होता है पायरूवेट. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज पायरूवेट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. अब यहाँ पे है क्वेश्चन स्टेटमेंट्स है द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप are sodium or potassium salts of long chain fatty acids. The molecules of soap contain both hydrophobic and hydrophilic ends. उसके बाद detergents are more effective than soaps in hard water. D, in missiles the ionic end of the molecule is towards oil droplet while the other end faces outside. तो आपको पूछा गया है 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी. तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली नोट्स में से आया हुआ है. यहाँ पे सोप एंड मिसल फॉर्मेशन की बात हो रही है. सो क्वेश्चन व्हेन dirt and greases are mixed with soap water, soap molecules arrange them in tiny cluster known as micelle. The hydrophilic part sticks to the water and form outer surface of the micelle and hydrophobic part to oil and grease. So आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन अच्छे से दी गई है और बाय पिक्चर हमें समझाया गया है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन द सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर. पूछा गया है कि जब सनलाइट ट्रेवल करती है अर्थ एटमॉस्फेयर तो क्या होता है लाइट के साथ. सो ए द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द रेड कलर. बी ऑप्शन है द रेड कलर इज स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द ब्लू कलर. सी बोथ द ब्लू एंड द रेड कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली. ऑप्शन डी द ब्लू कलर इज नॉट स्कैटर्ड बट द रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट. अब 81 की बात करी गई है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट अच्छे से दिया गया है, एक्सप्लेन करा गया है, विबग्योर अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है. और यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा गया है कि ब्लू कलर स्काई एंड ओशियंस बिकॉज ऑफ लार्ज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर. ब्लू कलर की बात है. सो आपका ऑप्शन भी क्या है द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द रेड कलर. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस. तो ये हमारे साइंस के क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से डिस्कस करे और हमने देखा कि जो आपके क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली हमारे नोट्स में से आ रहे हैं, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हमारे क्वेश्चन नोट्स में से आए हुए हैं. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले जो एग्जाम है आपके एनडीए 2 2025, सीडीएस 2 2025, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. आपकी तैयारी हमारी जिम्मेवारी होगी और साथ में आप देख सकते हो कि नोट्स में से ही हमारा मैक्सिमम जो पोर्शन है वो लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड आ रहा है हमारा. सो बाकी आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी